Hello friends, in the last class we dealt with the concept of appropriation of profits, where I explained you that what exactly is appropriation of profits vis-a-vis charge against profits, why this concept of appropriation of profits is applicable to partnership firms and companies but it is not applicable to proprietor concerns. We also dealt with one of the major appropriation of profits known as interest on capital, and I also explained you a flowchart on interest on capital explaining the concept of adequate profits and inadequate profits. I am pretty sure that you would have already viewed the last video. In case if the answer is no, I suggest that please go for the last video first. Once you are through with the last video, then only start up with this video, right? Now today's lecture is dedicated to the topic what you can see on the screen, that is calculation of interest on capital and interest on drawings, right? So let's start with it. I would always advise you to give a new heading. अगर पेज खत्म हो रहा है तो फ्रेश पेज पे दीजिए. Give the heading calculation of interest on capital and interest on drawing. Now let me explain you the concept, then we can write down the further points. I'll be dictating you the further points, but let's understand the concept first. So today's class is more of a fun, where I teach you various mathematical formulas. Well, don't get frightened by it. Mathematical formulas, very simple mathematical formulas, and it's going to be a absolute fun class. So let's go ahead with it. Now, first thing, what we have already seen in the last video is that whenever we talk of interest on capital or we talk about interest on drawing, it's always calculated at year end. ऐसा कभी नहीं होता कि अप्रैल महीने में, जून महीने में, मई महीने में पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया. नो, इट विल ऑलवेज हैपन एट ईयर एंड and it is moreover payable to the partners only. So you need not pay to the partner every month or every quarter the interest. So interest is always calculated at year end. So if this is your timeline, आपने heading दे दी, preferably fresh page पे आपने heading दे दी. अब आप सिर्फ lecture सुनिए, मैं dictate करूंगा आपको points, but that will be a bit later. So just listen and enjoy to the lecture. Now, when we talk of interest on drawing and interest on capital, it is always calculated at year end. So if this is your timeline where this represents the beginning of the year and this represents the end of the year, then my dear friend, you would always be calculating IOC. Interest on capital is commonly known as IOC and interest on drawing is commonly known as IOD. So whether it is calculation of IOC or it is calculation of IOD, it is always done at year end. There are many students who have asked me doubts in last 2-3 class कि year end तो 31st March को होता है. Well, it has been clarified so many times that year end as per Income Tax Act happens on 31st March. As per accounts, the year may happen to end any point of time as per your choice. A year may end on 31st December, a year may end on 31st March. अच्छा, और एक डाउट स्टूडेंट्स को ये आया है कि हमें कहां से समझेगा कि ईयर एंड कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है कि मार्च में हो रहा है. वेल, इट्स वेरी सिंपल. इफ द क्वेश्चन गिव्स यू years like this 2019, 2020, 2018, then necessarily they are talking about the calendar years and they are bound to end on 31st December, right? But if they give you years something like this, which is 2018-19 or 2020-21, then it is bound to end on 31st March. Why? Because when we write 2020-21, it means it started on 1st April 20 and it will end on 31st March 21. तो अगर सिर्फ 2018 लिखा है या सिर्फ 2019 लिखा हुआ है, ये वाला, then the year is a calendar year and it ends on 31st December. But if it is written something like this 2018-19 or 2021, that means it ends on 31st March. And if no hint is given in the question, then the only assumption you can make is that the year ends on 31st March if the hint is not given in the question. But if it pretty clearly specified, then you have to go as per the specifications of the question. Is that okay? Right. So as I said, when we talk about IOC
and IOD, that is interest on capital and interest on drawing. My dear friend, it is always calculated at year end. तो मैं बहुत ही मजाक में स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि बेटा जब भी आप आईओसी और आईओडी कैलकुलेट कर रहे हो, आप हमेशा मान के चलो कि आप कहां खड़े हो, आप ईयर एंड पे खड़े हो, आप ईयर एंड पे खड़े हो. कैसे खड़े हो? मुस्कुराते हुए खड़े हो. आप कहां खड़े हो? ईयर एंड पे. जस्ट फॉर अ लाइटर नोट, आप ईयर एंड पे खड़े हो मुस्कुराते हुए. इसका मतलब यह है कि यू विल ऑलवेज कैलकुलेट आईओसी एंड आईओडी एट ईयर end. Is that okay? Now, how do we calculate IOC and IOD? Guys, please understand that eventually you are calculating IOC or IOD where I stands for interest. Right? तो ये चैप्टर हो, कोई दूसरा चैप्टर हो, रियल लाइफ हो, आपके पापा का बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, अगर हम इंटरेस्ट वर्ड की बात कर रहे हैं तो कॉमन सेंस प्रिवेल्स. स्टैंडर्ड 11th हमने और एक टॉपिक देखा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. A pure common sense prevails that interest anywhere in the world is always calculated for the period for which the loan is being used. जिस पीरियड के लिए लोन यूज हो रहा है उसी पीरियड के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा. That's pretty common sense. You are not learning a new logic in the chapter of partnership. Interest by the word, जिसको हम हिंदी में ब्याज भी कहते हैं, आप ब्याज उतने समय के लिए ही देते हैं ना जितने समय के लिए आपने लोन यूज किया है. Yes or no? So even in this chapter of partnership, so first thing what you learned was that whether you are calculating, let's talk of IOC first, interest on capital. तो अगर आप IOC निकाल रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखना है up to your board exams is that आप year end पे खड़े हुए हो. आप year end पे खड़े हो मतलब आप ईयर एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो. इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एनीवेयर ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा. इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एट ईयर एंड. इसलिए हम क्या बोलते हैं? आप ईयर एंड पे खड़े हो मुस्कुराते हुए. राइट? नाउ व्हाट विल हैपन? Sir, the question will clearly specify the capital of the partner. Now this is beginning of the year, right? This one is the beginning of the year. Let's assume 1st January. 1st January is the beginning of the year and 31st December is the year end. Now the question will clearly specify that on 1st January you had a capital. Say you had a capital of 10 lakhs. That is on 1st January. Now apart from it, they will specify that on say 1st May you introduced another 7 lakhs. And on 1st November you introduced another 2 lakhs. Now this is what the question will specify. What you have to simply do is you have to calculate interest for the period for which the loan is used. Yes na? So what you will do is, आप कहां खड़े हो? Come on, आप कहां खड़े हो? Year end. कैसे खड़े हो? मुस्कुराते हुए. आपको सिर्फ इतना करना है, बस ये टाइमलाइन है. दिस इज योर timeline to calculate IOC. Timeline starts at the beginning of the year and it ends at the end of the year. सर पर why beginning of the year? पिछले साल को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि लास्ट ईयर का इंटरेस्ट लास्ट ईयर कैलकुलेट हो गया है. नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा. इफ यू आर कैलकुलेटिंग IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन द करंट ईयर. करेक्ट? पिछले साल का ब्याज पिछले साल कैलकुलेट हो गया है, अगले साल का ब्याज अगले साल कैलकुलेट होने वाला है. आप करंट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और आप कहां खड़े हो? ईयर एंड पे. कैसे खड़े हो? मुस्कुराते हुए खड़े हो. इज दैट ओके? राइट? आप मुस्कुराते हुए खड़े हो. तो आपको क्या करना है? अब आप ईयर एंड पे खड़े हो. यस, यू आर स्टैंडिंग एट ईयर एंड. आपको करना क्या है? ये 10 लाख रुपए, चेक दिस, ये 10 लाख रुपए 1st जनवरी से आपके पास थे और आप कैलकुलेट कर रहे हो ईयर एंड पे, दैट इज 31st दिसंबर. आपको सिर्फ इसको स्ट्रेच करके ईयर एंड तक ले जाना है. सो दिस 10 lakhs इज बीइंग यूज्ड फॉर 12 months. नेक्स्ट, ये 7 lakhs, दिस 7 lakhs यू हैव टू स्ट्रेच अप टू ईयर एंड एंड दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर 8 months, मई से लेके दिसंबर. एंड दिस 1st November what capital is introduced is used only for 2 months, November and December. So what you will do? ये जो 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए, राइट? लेट्स अज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम. तो ये 10 लाख रुपए 12 महीने के लिए यूज हुए, तो 12 महीने का इंटरेस्ट. नेक्स्ट,
that 7 lakhs is used for 8 months, so into 8 by 12, and next that 2 lakhs is used for 2 months. It is this simple, my dear friend, right? करना क्या है, पार्टनर का कैपिटल कितना है ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा. सो लेट्स अज्यूम दैट इन दिस क्वेश्चन it is specified that the opening balance of partners capital on 1st January was 10 lakhs. check the timeline. हमने टाइमलाइन बनाई है. टाइमलाइन हम कब की बनाते हैं, करंट ईयर की. 1st जनवरी को बोर्ड पे देखिए, 1st जनवरी को कैपिटल कितना था, 10 lakhs. फिर 1st मई को और 7 lakhs इंट्रोड्यूस हुआ, राइट. विपुल वोरा का कैपिटल वीपीए में साल के शुरुआत में 10 लाख का था. फिर 1st मई को वीपीए को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने और 7 लाख रुपए डाले. फिर 1st नवंबर को और पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने और 2 लाख रुपए डाले, राइट. तो ये टाइमलाइन पे जब जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है वो टाइमलाइन पे आपने मार्क कर दिया कि 1st जनवरी, देखिए यू हैव जस्ट पुट द मार्क. 1st जनवरी 10 lakhs, 1st में 7 lakhs, 1st नवंबर 2 lakhs. तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ यू विल मार्क इट इन द टाइम लाइन. यस. अब यू आर कैलकुलेटिंग एट ईयर एंड. आप कहां खड़े हो, ईयर एंड पे. कैसे खड़े हो, मुस्कुराते हुए. तो आपको करना क्या है, ये जो मार्किंग आपने टाइमलाइन पे की है ये हर एक फिगर को आपको ईयर एंड तक स्ट्रेच करना है. क्या करना है, ईयर एंड तक आपको स्ट्रेच करना है. ईयर एंड तक क्यों स्ट्रेच करना है, क्योंकि यू आर कैलकुलेटिंग एट ईयर एंड. सो हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस, यू वुड इंटरप्रेट दिस एज 1st जनवरी को जो कैपिटल 10 लाख रुपए है वो 1st जनवरी से 31st दिसंबर तक यूज हुआ है. कहां यूज हुआ है, 1st जनवरी से इट इज being used up to 31st December. That means it's used for 12 months. तो 10 लाख रुपए 12 महीने के लिए यूज हुए तो उस पे 12 महीने का इंटरेस्ट. उसके बाद जो 7 lakhs है that is being used from 1st May to 31st December. सर ये अगले साल यूज नहीं होगा क्या, होगा, पर उसका इंटरेस्ट अगले साल कैलकुलेट होगा. इस साल मई में मैंने वीपीए में पैसे लगाए एंड वीपीए ने वो पैसा मई से लेकर दिसंबर तक यूज किया है. सो दैट्स यूज फॉर 8 months. और नवंबर में जो मैंने पैसे लगाए 2 लाख रुपए दैट वीपीए इज यूज फॉर 2 months, नवंबर एंड दिसंबर. तो होगा क्या, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, ये जो 10 लाख रुपए है ये 10 लाख रुपए में ईयर एंड तक स्ट्रेच करूंगा तो इट्स यूज फॉर 12 months. यस, इट्स यूज फॉर 12 months. नेक्स्ट ये जो 7 lakhs है ये अगर मैं ईयर एंड तक स्ट्रेच करूंगा तो इट्स यूज फॉर 8 months. एंड वो जो 2 लाख रुपए है मैंने नवंबर में इंट्रोड्यूस किए थे वो अगर मैं ईयर एंड तक स्ट्रेच करूंगा तो इट्स यूज फॉर 2 months. So what exactly you are doing? Check this. Please check this. In a pictorial form, you will understand it in a better manner. My dear friend, this is the year end. मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मुस्कुराते हुए. आप सिंपली क्या कर रहे हैं, आपने जो भी पैसा यूज किया है आप उसको ईयर एंड तक स्ट्रेच कर रहे हैं एंड यू आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट. Isn't it as simple as standard 8 or standard 9? Just you need to understand the methodology to solve it. So go for a timeline. Go for a timeline. जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुए उसको मार्क करें आप टाइमलाइन पे और हर एक फिगर को आप ईयर एंड तक स्ट्रेच करें. जितने पीरियड के लिए वो पैसा यूज हुआ है उतने पीरियड के लिए यू विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट. आई होप इट्स फाइन. प्रिटी सिंपल. यस. नाउ we go for the concept of interest on drawing which is much more important, right? So एक काम करेंगे, आपने हेडिंग दे दी थी, आपने हेडिंग ये दी थी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट? उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं. आई एम जस्ट डिक्टेटिंग इट फॉर यू, प्लीज राइट डाउन. ये आपने हेडिंग दी थी, प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. IOC and IOD is calculated. IOC and IOD is calculated at year end. IOC and IOD is calculated at year end. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, राइट? नाउ योर सेकेंड पॉइंट. योर सेकेंड पॉइंट. Interest is calculated for the period. Please write down. Interest is calculated for the period for which the amount is being used.
Interest is calculated for the period for which the amount is being used. ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, राइट. थर्ड पॉइंट, always calculate IOC and IOD. Third point, always calculate IOC and IOD on different timelines. अब सर ये क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन. ये आपने लिख लिया सर. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि देयर इज दिस पार्टनर नोन एज मिस्टर राम. ओके, देयर इज दिस पार्टनर नोन एज मिस्टर राम. अब इसके कैपिटल की डिटेल्स भी दी हुई है. सो दिस पार्टनर मिस्टर राम, इसके कैपिटल की डिटेल्स भी दी है और इसके ड्राइंग्स की डिटेल भी दी हुई है. कैपिटल की डिटेल्स भी दी है और ड्राइंग्स की डिटेल भी दी है. तो नॉर्मली व्हाट स्टूडेंट वुड डू इज दे वुड मेक अ टाइमलाइन. ओके, लेट्स मेक अ टाइमलाइन. दे वुड मेक अ पर्टिकुलर टाइमलाइन, नो डाउट अबाउट इट, राइट. So this is the beginning of the year, this is the end of the year. Suppose 1st January and 31st December. Now if they say that he had a opening capital, so they would write here he had a opening capital right from the first day of the year. He had a opening capital of 10 lakhs, right? इसके बाद ये दिया रहेगा कि he introduced another 8 lakhs on 1st June. तो स्टूडेंट्स इसको भी मार्क कर लेते हैं. अब इसके बाद ये लिखा हुआ है ऑन 1st September ही विड्रू. ढंग से सुनिए, ऑन 1st September ही विड्रू मतलब ड्रॉइंग्स. ही विड्रू 3 lakhs. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ही विड्रू 3 lakhs. तो विड्रॉल विल बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ऑन द टाइमलाइन. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं. So sir, is this wrong? No, this is not wrong. But my intention is always that you should not make even the slightest of mistakes in the main examination. Right? पर सर इसमें हम क्या गलती करेंगे? आपने बोला इसको स्ट्रेच करना है, हम स्ट्रेच करते हैं ना सर. आप क्या करोगे? सर हम स्ट्रेच करते हैं. This 10 lakhs is used for 12 months. This is used for 7 months. And this will be negatively calculated for 4 months. सर कैपिटल मतलब पॉजिटिव, ड्राइंग मतलब नेगेटिव. तो वो देखिए सर 10 लाख को सबको ईयर एंड पे स्ट्रेच करना है सर, क्योंकि हम ईयर एंड पे खड़े हैं मुस्कुराते हुए. तो सर वो 10 लाख पे 12 महीने का, 8 लाख पे 7 महीने का, ये दोनों पॉजिटिव, और 3 लाख पे 4 महीने का नेगेटिव. सर इजीली आ जाएगा. वेल कंसेप्चुअली आप बिल्कुल गलत नहीं हो अगर आप ये सोच रहे हो तो. पर एग्जाम में प्रॉब्लम कहां हो जाती है? देयर आर एवरी चांसेस दैट द रेट ऑफ आईओसी एंड द रेट ऑफ आईओडी इज डिफरेंट. हो सकता है कि आईओसी बोले हैज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम एंड आईओडी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. और इसके चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में कि दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिए. अब होता क्या है, जब आप एग्जाम की घाई में होते हो ना, एग्जाम की घाई में आप ये देखिए, आप इसमें क्या करोगे? चेक दिस. आप क्या करोगे? सर ये 10 लाख पे 12 महीने के लिए 10%, 8 लाख पे 7 महीने के लिए 10%, ये आप क्लियरली करोगे. और वो घाई घाई में क्या होता है, वो 3 लाख पे 4 महीने के लिए नेगेटिव भी 10% कर लेते हो. Therefore, looking into my so many years of experience, please don't do like this. Conceptually आपने जो लिखा है या आप जो सोच रहे हो या मैंने जो लिखा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. Can you put it on the same timeline? Yes, आप कैपिटल को पॉजिटिव और ड्राइंग को नेगेटिव सेम टाइमलाइन पे रख सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करोगे. And therefore I never recommend this. What I would recommend is, it would sound a bit more clerical, but I would recommend कि ये negative मतलब ये जो drawing है, ये drawing को वहां से हटा ही दो. मतलब वही मैंने point अभी आपको लिखवाया that IOC and IOD will be calculated on different timelines. Different timelines मतलब ये जो मेरा timeline है, ये मेरा capital का timeline हो गया. तो इसमें मैं सिर्फ कैपिटल के फिगर मार्क करूंगा, इसमें मैं ड्राइंग के फिगर मार्क नहीं करूंगा. फाइन. एंड व्हाट आई डू इज तो यहां मैं आईओसी 10% के हिसाब से निकाल लूंगा. तो आई विल अराइव एट वन फिगर. नाउ लेट्स अज्यूम दैट माय आईओसी कम्स टू x बराबर. अब मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर अनदर टाइमलाइन एंड दिस टाइमलाइन विल बी फॉर ड्राइंग्स. दिस विल बी अ टाइमलाइन फॉर ड्राइंग्स और मैं इसमें ड्राइंग्स मार्क करूंगा. मेरा ड्राइंग कब था? 1st सितंबर को था.
1 सितंबर को ये फिगर मार्क करूंगा एंड आई विल स्ट्रेच इट अप टू ईयर एंड। बट इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां आप सही करो, क्योंकि जब आप दो अलग अलग टाइम पे हो तो अलग अलग टाइमलाइन पे हो तो चांसेस आर वेरी हैवी कि यू विल रिमेंबर कि मैंने अलग अलग टाइमलाइन इसलिए बनाई है क्योंकि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट एंड दैट इज वेयर सिली मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड। तो आज के बाद मेरा हर स्टूडेंट हमेशा क्या करेगा, कैपिटल की टाइमलाइन अलग बनाएगा, ड्राइंग की टाइमलाइन अलग बनाएगा। तो आईओसी अलग निकलेगा, आईओडी अलग निकलेगा एंड नाउ हियर योर आईओडी विल बी से वाई। इज दैट ओके? राइट? सो आईओसी और आईओडी निकालने का तरीका एक ही है, टाइमलाइन पे कैपिटल के फिगर्स मार्क करिए, अलग टाइमलाइन पे ड्राइंग्स के फिगर मार्क करिए, उसको ईयर एंड तक स्ट्रेच करिए एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट. It is that simple, right? However, when we talk of questions of 3 marks and 4 marks, they will always love to play with IOD, interest on drawing. देखिए IOC में ज्यादा खेलने के लिए है नहीं, उनको हर बार ये आपको बताना ही पड़ेगा कि किस डेट पे आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें ज्यादा खेलने के लिए नहीं है. बट IOD में खेलने के लिए काफी कुछ है. तो आपने लास्ट पॉइंट लिखा दैट दे आर कैलकुलेटेड ऑन सेपरेट टाइमलाइंस. अब होता क्या है ये देखिए, व्हेन वी टॉक ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, व्हेन वी टॉक ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर उन्होंने हमें स्पेसिफिक डेट दी हुई है तो हम वो स्पेसिफिक डेट फॉलो कर लेते हैं. अगर उन्होंने हमें स्पेसिफिक डेट दी है, सपोज उन्होंने बोला है कि हमने पैसे 1 अगस्त को विड्रॉ किए, तो हम 1 अगस्त से ईयर एंड तक स्ट्रेच करके एक्चुअल डेट दी है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. बट अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है, if the question does not specify about the actual date of drawing, बस इतना लिखा है कि ड्राइंग्स हुआ है, then what do? We apply the same logic what we applied in the chapter of depreciation in standard 11th. What do we do? अगर एसेट की एक्चुअल डेट लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए, अगर एसेट की एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन लिखी हुई है, ये मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को. If it is clearly mentioned that I purchased the asset, a fixed asset, say building on 1 October, तो मैं क्या करता हूं, बिल्डिंग मैंने 1 अक्टूबर को खरीदी और मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, तो आई विल चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर 3 months. If I have purchased the asset on 1st February and the year is ending on 31st December, then I will charge depreciation for 11 months. Yes or no? अगर एसेट खरीदने की एक्चुअल तारीख दी हुई है तो मैं एक्चुअली उतने महीने के लिए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा. बट अगर एक्चुअल डेट ऑफ एसेट एक्विजिशन इज नॉट गिवन, सिर्फ इतना लिखा है कि इस साल एसेट खरीदा पर कौन सी डेट पे खरीदा, अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है, देन 11th स्टैंडर्ड में क्या सिखाया था आपको ये सिखाया था दैट इफ द एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट गिवन देन यू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर हाफ ईयर. It is always assume that आपने 20 साल में खरीदा. There is no other option available. You will always have to assume that you bought it on mid-year and you will calculate depreciation for half year. Exactly in the same manner. अगर मुझे ड्राइंग्स की एग्जैक्ट डेट दी हुई है, सपोज ये देखिए ये ड्राइंग्स है, सपोज मुझे ड्राइंग्स की एग्जैक्ट डेट दी हुई है 1 अक्टूबर, तो आई विल कैलकुलेट इट फॉर 3 months. If the exact date of drawing is given 1st February, I will calculate it for 11 months. But if the exact date of drawing is not given, then IOD, interest on drawing, is calculated for 6 months. इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो आपके पास और कोई assumption चल ही नहीं सकता. आपको हाफ ईयर मतलब 6 months का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. Is that okay? So you write down the next point. I think point number 4 है. पॉइंट नंबर 4 लिखिए. While calculating interest on drawing, आप IOD भी लिख सकते हैं. IOD, प्लीज राइट डाउन. While calculating interest on drawings, comma, if the exact date of drawing is not specified, if the exact date of drawing is not specified, comma, then IOD is calculated for. Then IOD is calculated for 6 months. Is calculated for 6 months.
अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप स्टार भी मार्क कर सकते हैं। तो रूल सिंपल है, एग्जैक्ट डेट दी है तो एग्जैक्ट डेट पे निकालेंगे, एग्जैक्ट डेट नहीं दी है तो वी कैलकुलेट फॉर 6 मंथ्स, राइट। नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सुपर स्कोरिंग है। व्हाट इज दैट? ड्राइंग्स का ही कंसेप्ट है। देयर इज ऑलवेज अ रेगुलरिटी इन ड्राइंग्स व्हेन इट कम्स टू पार्टनर्स। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, आप मुझे अब 1-2 साल से तो देख ही रहे हैं, सुबह सुबह मैं सीए फाइनल की क्लासेस लेता हूं, उसके बाद मैं सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस लेता हूं, उसके बाद मैं सीए फाउंडेशन की क्लास लेता हूं, फिर शाम को मैं 11-12 सीबीएसई की क्लासेस लेता हूं। तो आप मुझे जो देख रहे हैं इतने साल से, सुबह से रात तक मैं वीपीए में ही क्लासेस लेते रहता हूं, और कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, और कुछ मुझे आता है नहीं। अब सुबह से रात तक अगर मैं वीपीए में ही हूं और वीपीए में ही लेक्चर ले रहा हूं, तो मुझे मेरा घर भी तो चलाना है। घर चलाने के लिए जो मुझे पैसे लगेंगे वो मैं निकालूंगा भी वीपीए से ही। अच्छा, पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कभी कैश देती नहीं है, वो उसके अकाउंट को बढ़ा देती है। लेट मी अगेन गिव एग्जांपल। अगर एम्प्लॉय को वीपीए सैलरी दे रहा है तो इट विल बी सैलरी टू कैश और इट कैन बी सैलरी टू कैश, बट वीपीए विपुल वोरा पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो कभी इंटरेस्ट टू कैश नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी इंटरेस्ट टू कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कभी कैश नहीं देता, वो उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देता है, और फिर पार्टनर को जब कैश चाहिए तो वो ड्रॉइंग के माध्यम से वो पैसे पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ करेगा। तो सुबह से रात तक मैं वीपीए में पढ़ा रहा हूं और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो मेरा घर खर्च चलाने के लिए मुझे वीपीए से ही पैसे लेने पड़ेंगे। यस और नो? अब मेरा घर खर्च कितना है? मान के चलिए कि महीने का 10,000 रुपये। आप में से कुछ लोग हंस रहे, आपको पता है गरीबों पे हंसते नहीं है, राइट? यू ऑल नो मेरी रोज की कमाई है 450 रुपये पर डे, तो 10,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा है। तो हर महीने रेगुलर बेसिस पे मैं वीपीए से 10,000 रुपये निकालूंगा। यस और नो? सो जनरली व्हेन वी टॉक ऑफ पार्टनर्स ड्रॉइंग ना, दे वुड रेगुलरली विड्रॉ द सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट? तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर आपको आईओडी कैलकुलेट करना है, ये देखिए, अब मान के चलिए विपुल वोरा इज अ पार्टनर एंड ही विड्रॉज 10,000 एवरी मंथ, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर आप ही ने बोला कैपिटल हो या ड्राइंग हो अलग टाइमलाइन पे लो। यस, अभी हम आईओडी की बात कर रहे हैं, आईओडी की बात कर रहे हैं। अब हर महीने अगर मैं 10,000 रुपए निकाल रहा हूं तो सर मार्क करिए, लेट्स मार्क। यहां मैंने 10,000 निकाले, फिर 10, फिर 10, 10, 10, आप बोर हो रहे, मैं भी 10, 10, 10, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12, 10। हर महीने मैंने 10,000 रुपये निकाले, ऐसे मैंने 12 महीने निकाले। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि कैपिटल हो या ड्राइंग हो उसको अलग अलग टाइमलाइन पे लो, मार्क करो, और अब क्या करो, उसको ईयर एंड तक स्ट्रेच करो। तो आई विल स्ट्रेच इट। राइट, एंड व्हाट आई डू समथिंग लाइक दिस। सर जो पहले 10,000 है उसको मैंने 12 महीने यूज किया, फिर जो 10,000 है उसको मैंने 11 महीने यूज किया, फिर जो 10,000 है उसको मैंने 10 महीने यूज किया, और ऐसे करते करते जो आखिरी 10,000 है उसको मैंने 1 महीने यूज किया। एंड सभी को विपुल सर आपने बोला वैसे हम स्ट्रेच करते जा रहे हैं। वेल, इज दिस रॉन्ग? नो, इट इज करेक्ट, बट इट इज क्लरिकल। वाई इट इज क्लरिकल? क्योंकि 10,000 रुपए हर महीने आप इक्वल अमाउंट निकाल रहे हो, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल ऑल्सो बी द सेम, से 5%, 7%। तो बार बार ये चीज से मल्टीप्लाई करने की जगह हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना, कि 10,000 रुपए हर महीने जो आप निकाल रहे हो वो भी कॉमन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कॉमन है, और ये डिवाइड बाय जो 12 हो रहा है ये भी तो कॉमन है।
तो अगर रेगुलरली हम सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसा 12 बार स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. एक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स लगा के यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ शॉर्टकट फॉर्मूला. इज दैट ओके? तो प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5. Please write down. There is no escape. Please write down. Point number 5. Write down. If equal amount is withdrawn by partner, if equal amount is withdrawn by partner, equal को इनसर्कल करिएगा. अलग अलग अमाउंट नहीं हो सकते. सर मैं हर महीने तो निकाल रहा हूं, पर कभी 10, कभी 15, कभी 18, तो ऑप्शन ही नहीं, आपको स्ट्रेच ही करना पड़ेगा. मैथमेटिक्स आप तब लगा सकते हो, सिंपल फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन, राइट? तो आपने क्या लिखा? इफ इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन बाय पार्टनर, इक्वल को इनसर्कल करिए. इफ इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन बाय पार्टनर every month, comma, then we can apply the following shortcut formula. Then we can apply the following shortcut formula. ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको एक ऐसा टेबल बनाना है. एक मिनट सुन लीजिए, आपको टेबल किस तरीके से बनाना है. ओके, टेबल शुड बी समथिंग लाइक दिस. अब यहां आपको लिखना है दैट इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन. लेफ्ट साइड में क्या लिखना है आपको? इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन. एंड राइट साइड में आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. एक काम करेंगे, पहले टेबल देख लो फिर लिख लेना. इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. लेट्स फिल इन द फिगर्स. On first day of every month, on middle day of every month, on last day of every month. So on first day of every month, middle day of every month, last day of every month. Now this will be specified in the question. So how you can use a small mathematical common factor concept and apply is this way. और ये एग्जाम में बिल्कुल permissible है, right? So what you will do? Check this and then write down. How do you calculate interest on drawings? अगर इक्वल अमाउंट, ऊपर हेडिंग देखिए मैं इंसर्कल कर रहा हूं, इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इट विल बी मंथली ड्रॉइंग्स multiplied by interest rate multiplied by 6.5. Here it will be monthly drawings multiplied by interest rate multiplied by 6, and if it is on the last day of every month, then it will be monthly drawings multiplied by interest rate multiplied by 5.5.
जो लिखा है वैसा है, यहां डिवाइड बाय 12 वगैरह नहीं है. सो प्लीज फर्स्ट कॉपी दिस टेबल, कॉपी दिस टेबल. जो आपने पॉइंट लिखा उसके जस्ट नीचे प्लीज मेक दिस टेबल. Pause the screen and write it down. First day of every month, middle day of every month, and last day of every month. Please apply the formula as it is. Monthly drawing into interest rate into 6.5. Monthly drawing into interest rate into 6. Monthly drawing into interest rate into 5.5. Right? Now, वापस एक बात होती है कि एक है कि सर आप हमें रटा के छोड़ दे, ये रटाने वाली बात हो गई. इसका लॉजिक क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं. ये आपने लिख लिया, ये लिख लिया. लेट्स अंडरस्टैंड वो 6.5, 6 या 5.5 कहां से आया. लेट्स अंडरस्टैंड दैट हम 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू नाउ व्हाट आई एम टीचिंग, ये आपको लिखना नहीं है. ये टेबल लिख लिया सबने, ये टेबल लिखना कंपलसरी है. इसके बाद वो लॉजिक 6.5 कहां से आया, कहां से डेराइव हुआ, ये मैं आपको समझा रहा हूं. ये डेरिवेशन या लॉजिक आपको लिखना नहीं है. इट्स जस्ट फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ लेट्स अज्यूम दैट एवरी मंथ आई एम विड्रॉइंग 10,000. ओके, एवरी मंथ आई एम विड्रॉइंग 10,000. सो ऐसा आई एम विड्रॉइंग फॉर 12 टाइम्स. लाइक दिस आई विल बी विड्रॉइंग फॉर 12 टाइम्स. यस, अब मान के चलिए अपन उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसा आपको सिखाया हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या होगा. लेट्स अज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम. तो 15% इनटू फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आप विड्रॉ कर रहे हैं. यू आर विड्रॉइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. सो इफ यू आर विड्रॉइंग ऑन 1st January, well, a bit of software issues. Okay, so if you are withdrawing it on 1st January, then for how much time it is being used? So 1st January is a year end. It's being used for how many months? 12 months. Yes. So first time when you are withdrawing, it is used for 12 months. Then when you are withdrawing on 1st February, it is being used for 11 months. Then when you are withdrawing on 1st March, so from 1st March to 31st December, it is being used for 10 months. ऐसे when you withdraw on 1st December, well December is the year end, तो it is 1/12. मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूं कि वो 6.5 कहां से आया. तो अगर आप 12 महीने के लिए बेटा पैसे निकाल रहे हैं, वो भी 10,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, तो पहली बार आपने 1st January को निकाला तो वहां से 12 मंथ्स, देन 11, देन 10, देन 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट में 1. ये तरीका हो गया क्लरिकल तरीका कैलकुलेट करने के लिए. पर जैसा मैंने इसमें कहा 10,000 इज द कॉमन थिंग, 5% इज द कॉमन थिंग, एंड एवरी टाइम डिनोमिनेटर 12 इज द कॉमन थिंग. यस यस. तो ये कॉमन चीजों को अगर हम एक साथ कर ले तो इट इज 10,000 into 15% into denominator 12 can be written as 1/12. ये हमने अलग कर लिया. तो हमारे पास कॉमन क्या बचा? कॉमन हमारे पास ये सारी चीजें हो गई. अब अलग क्या था? 12, 11, 10. तो इसको हम लिख लेते हैं into 12 plus 11 plus 10 plus 9, ऐसा करते करते up to +1. So then this will be rewritten as 10,000 into 15% into 1/12 into ये 12 से लेके 1 तक हम रिवर्स जाएंगे तो इट कम्स टू 78. इट कम्स टू 78. फाइनली दिस विल कम टू 10,000 into 15% into इसको अगर लिखा तो इट कम्स टू 6.5. और यही मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया हुआ है. क्या लिख के दिया हुआ है? मंथली ड्रॉइंग्स. व्हाट आर माय मंथली ड्रॉइंग्स? 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5. ये देखिए जो हमने टेबल बनाया था. चेक दिस. मंथली ड्रॉइंग्स इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 6.5. एग्जैक्टली इफ यू अप्लाई द सेम लॉजिक, अगर मिडिल ऑफ द मंथ पे आप निकालेंगे तो इट विल कम टू 6 एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ पे निकालेंगे तो इट विल कम टू 5.5. बट दिस डेरिवेशन वॉज ओनली फॉर अ सिंपल पर्पस दैट आप कोई चीजों को रटो नहीं
और अगर आपने याद कर भी लिया तो एटलीस्ट यू हैव गट्स टू एक्सप्लेन टू योर जूनियर्स और योर कलीग्स दैट ये कहां से आया. इज दैट ओके? पर ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो? हेडिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एवरी मंथ, फर्स्ट डे, मिडिल डे और लास्ट डे. फर्स्ट डे हो तो 6.5, मिडिल हो तो 6, लास्ट डे हो तो 5.5. अब सर हर महीने की 10 तारीख लिखी रही तो अब ऐसा नहीं रहेगा. दे आर नॉट चेकिंग योर मैथमेटिकल नॉलेज, दे आर चेकिंग योर अकाउंटिंग नॉलेज. हाँ, बट वापस ये आपका हो गया पॉइंट. अब रेगुलर इंटरवल्स पे हो सकता है कि मंथली ना निकले, क्वार्टरली कोई बंदा पैसे निकाले. क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स. तो फिर हमें और एक टेबल बनाना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, 2 से 3 मार्क के लिए आता है और 2 मिनट में सॉल्व होता है. तो अब नेक्स्ट टेबल में आपको क्या बनाना है ये देखिए. टेबल ऐसा ही रहेगा. इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन, द ओनली थिंग दैट विल गेट चेंज्ड इज एवरी मंथ के जगह इट विल बी एवरी क्वार्टर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, ऑन द मिडिल डे ऑफ एवरी क्वार्टर, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. मंथली ड्राइंग्स थी तो हम मंथली लिखते थे, क्वार्टरली ड्राइंग्स है तो हम यहां क्वार्टरली लिखेंगे. सो क्वार्टरली ड्राइंग्स, quarterly drawings, quarterly drawings, and then again applying the fundamental of mathematics, this will be 2.5, 2 and 1.5. इसको लिख लीजिए वापस. अगला टेबल बनाना है आपको. आपने मंथली ड्राइंग्स वाला टेबल बना लिया, अब आप ये क्वार्टरली ड्राइंग्स वाला बनाएंगे. अगेन इट शुड बी इक्वल अमाउंट दैट शुड बी विथड्रॉन. आपको चाहिए तो 2.5 का डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा, इट्स सेम लॉजिक, पर पहले ये टेबल को लिखे. इट्स कंपलसरी. आप मान के चलिए हर साल एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का, या तो ये मंथली या ये क्वार्टरली ड्राइंग पे पूछता है, एंड यू रिक्वायर नॉट इवन 2 मिनट्स टू सॉल्व इट. क्यों? क्वार्टरली ड्राइंग या मंथली ड्राइंग का फिगर दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा. बस आपको याद क्या रखना है? यू हैव टू आइदर मल्टीप्लाई बाय 6.5 और 6 और 5.5 इन केस ऑफ मंथली ड्राइंग, और यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2 और 1.5 इन केस ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग. बस इतना याद रखना है. सॉल्व करने को एक्चुअली 1 मिनट से ऊपर नहीं लगता. प्लीज ड्रॉ दिस टेबल राइट नाउ. प्लीज ड्रॉ इट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस. राइट. सो अभी तक हमने क्या देखा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की तारीख ना दी हो तो यू टेक इट फॉर हाफ ईयर. रेगुलर इंटरवल्स पे हो तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो. इररेगुलर इंटरवल्स हो या इररेगुलर अमाउंट हो, अनइक्वल अमाउंट हो, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको वो ईयर एंड तक स्ट्रेच करके ही निकालना है. अब मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस मैथमेटिक्स. ऑफ लेट 2-3 साल से ना उन्होंने मंथली विड्रॉल्स किए, बट मंथली विड्रॉल्स पूरे 12 महीने के लिए नहीं किए. ये कब था? ये अभी जो हमने टेबल देखा था दैट वाज फॉर ऑल द 12 मंथ्स. अब ऑफ लेट उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछना चालू किया है उसमें कुछ इस तरीके से भी पूछना चालू किया कि इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन. हर महीने निकाल रहे हैं पर 6 या 8 महीने निकाल के छोड़ देंगे, पूरे 12 महीने निकाल नहीं रहे हैं. आई रिपीट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हर महीने की ड्राइंग्स अगर बोलिए और इक्वल अमाउंट है तो 6.5, 6 या 5.5. हर क्वार्टर में इक्वल अमाउंट बोला है तो 2.5, 2 एंड 1.5. यस, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट अब मैं आखिरी सिनेरियो आपको बता रहा हूं. वो क्या बोलता है? हमने हर महीने 10,000 रुपए निकाले, पर पहले 9 महीने के लिए निकाले, या पहले 6 महीने के लिए निकाले, या आखिरी 6 महीने के लिए निकाले. मतलब हर महीने निकाले, कंटिन्यूअस निकाले, इक्वल अमाउंट निकाला, पर पूरे 12 महीने नहीं निकाले. अब अगर ऐसा रहा तो कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है? तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. 1-2 लाइन छोड़ो और प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. चालू करें. राइट डाउन. इफ अ पार्टनर हैज विथड्रॉन, इफ अ पार्टनर हैज विथड्रॉन इक्वल अमाउंट, अगेन इक्वल अमाउंट होना जरूरी है. इफ अ पार्टनर हैज विथड्रॉन इक्वल अमाउंट
continuously, equal amount continuously for some months, SOME, for some months, and not for the whole year, and not for the whole year. लिखा। अब इसमें कंटिन्यूसली और इक्वल ये दोनों वर्ड्स को इनसर्कल करिए। कंटिन्यूसली एंड इक्वल ये सेंटेंस में उसको इनसर्कल करिए। इक्वल अमाउंट भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस मंथ्स होने चाहिए, राइट? तो सेंटेंस लिख लिया आपने। इफ अ पार्टनर हैज विथड्रॉन इक्वल अमाउंट continuously for some months and not for the whole year, comma, then the interest on drawing will be calculated as follows. Then the interest on drawing will be calculated as follows. पहले फॉर्मूला सुन लो, समझ लो, फिर लिखना। So IOD is equal to, यहां पे आएगा टोटल ड्रॉइंग्स, जितना भी पैसा उसने निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाइड बाय पीरियड डिवाइडेड बाय 12। सर व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड? आई विल एक्सप्लेन यू। ये आपका फॉर्मूला हो गया, राइट? आप ये पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। एज फॉलोज लिखा, एक लाइन छोड़ के ये फॉर्मूला लिखिए। लिखा। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय दिस पीरियड? लिसन टू इट केयरफुली। बाद में लिखना, period is defined as average of, period is defined as average of number of months from first drawing to year end and number of months from last drawing to year end. I'll explain you. It's very simple. बस लिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है। It's very simple. ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, you would have written this formula, right? उसके बाद पीरियड का मतलब क्या होता है तो ये लिखिए, पीरियड इज डिफाइंड एट, लेट मी डिक्टेट यू, राइट डाउन, पीरियड इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ number of months from the date of first drawing, number of months from the date of first drawing to year end, एक लाइन छोड़ के, एंड वापस एक लाइन छोड़ के, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ड्रॉइंग, number of months from the date of last drawing to year end, और वो जो आपने लिखा है पीरियड इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ, एवरेज को इंसर्कल करिएगा, एवरेज ऑफ, सो इंसर्कल द वर्ड एवरेज। अब समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये कब लगता है? जब बंदा इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पर पूरे 12 महीने नहीं कर रहा, कोई 6 महीने या 8 महीने कंटिन्यूअसली कर रहा है और बंद हो गया, तो सर हम वो स्ट्रेच करके ही नहीं निकाल सकते क्या? आप बिल्कुल निकाल सकते हो, स्ट्रेच करके तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, बट अगर आपको शॉर्टकट आता हो तो एग्जाम में आपका टाइम बचता है।
अगर पूरे 12 महीने निकाल रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो अभी आपने ऊपर टेबल में लिखा 6.5, 6 एंड 5.5। बट पूरे 12 महीने विड्रॉ नहीं कर रहा, कंटिन्यूअसली 6 या 8 महीने ही विड्रॉ कर रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज दिस? लेट्स टेक अ एग्जांपल जिससे आपको समझेगा। सपोज देयर इज वन पर्सन हु इज विड्रॉइंग 10,000 पर मंथ। ओके, टेक दिस, लिखना नहीं है, सुनिए, इस पे बहुत क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये सब समझा रहा हूं। देयर इज अ पर्सन हु इज विड्रॉइंग 10,000 पर मंथ, राइट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट is 15% per annum on the drawings, right? So 10,000 per month, rate of interest 15% per annum. Year ends on 31st December. First withdrawal 1st June, last withdrawal 1st November। अब ऐसा दिया है तो हमारा ईयर कौन सा है? जनवरी से लेके दिसंबर तक हमारा ईयर है। यस, बंदा हर महीने पैसे नहीं निकाल रहा है, बंदे ने 10,000 रुपए निकाले, हर महीने निकाले, 15% पर एनम के रेट से निकाले, पर निकाले कब से? 1 जून को पहली बार निकाला, और फिर कंटिन्यूअसली एवरी मंथ वो निकाल रहा है अप टू 1 नवंबर। तो 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर एंड 1 नवंबर, ऐसे उसने 6 महीने पैसे निकाले। अब एक तरीका है, सिंपल है, तो 6 महीने को ईयर एंड तक स्ट्रेच करो और आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है? सिंपल, ये देखिए कितने महीने निकाला उसने, वापस देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 6 महीने पैसे निकाला। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल ड्रॉइंग। व्हाट इज माय टोटल ड्रॉइंग? 10,000 इंटू 6, 60,000, राइट? Multiplied by interest rate. My interest rate is 15%. Multiplied by period divided by 12. Now what do you mean by period? Let's understand. पहली विड्रॉल कब हुई? सर 1 जून। बेटा 1 जून को पहली विड्रॉल हुई, तो पहली विड्रॉल से ईयर एंड 31 दिसंबर, और आखिरी विड्रॉल कब हुई? 1 नवंबर, वहां से ईयर एंड। डेट ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंड, डेट ऑफ लास्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंड, नंबर ऑफ मंथ्स निकालिए। तो 1 जून से 31 दिसंबर इज 7 मंथ्स, 1 नवंबर से 31 दिसंबर इज 2 मंथ्स। यस, इसका एवरेज 7 + 2 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालने के लिए 2 का है तो विल डिवाइड बाय 2। So this comes to 4.5. This is your period 4.5. तो पीरियड कैसे डिफाइंड होता है? फर्स्ट विड्रॉल से ईयर एंड, लास्ट विड्रॉल से ईयर एंड। तो फर्स्ट विड्रॉल से ईयर एंड 7 महीने, लास्ट विड्रॉल से ईयर एंड 2 मंथ्स, 7 और 2 का एवरेज 4.5। बस ये फॉर्मूले में डाल दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था वापस लिख लेते हैं। टोटल ड्रॉइंग, बेटा हर महीने मैं 10,000 रुपए निकाल रहा हूं 6 महीने के लिए, तो माई टोटल ड्रॉइंग इज 60,000। माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% इंटू पीरियड, अभी मेरा पीरियड आया था 4.5 डिवाइडेड बाय 12। नाउ दिस विल बी माई आंसर, 60,000 इंटू 15% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। माई आंसर विल बी 3375। अब किसी स्टूडेंट को अगर इच्छा हो कि सर प्रूव करके बताओ कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे एग्जाम के लिए, आप प्रूव कैसे करोगे? तो लेट्स गो। पहली विड्रॉल कब थी आपकी? अब ये क्रॉस वेरिफिकेशन है सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, 1 जून। सेकेंड विड्रॉल 1 जुलाई, देन 1 अगस्त, देन 1 सितंबर, देन 1 अक्टूबर, देन 1 नवंबर। ये आप टाइमलाइन पे मार्क कर लोगे ऑल ऑफ यू। If you mark this on timeline, then ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यहां से आप स्ट्रेच करोगे ईयर एंड तक। कम ऑन, करोगे? ये सन हो तो करोगे, तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? ये देखो, 1 जून को आपने 10,000 विड्रॉ किए,
1 जुलाई को 10,000, 1 अगस्त को 10,000, 1 सितंबर को 10,000. See, basically there is no need to prove this, but all those people who are really loving mathematics, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है. तो 10,000 into rate of interest was 15%. अब आप खुद देखिए, ये देखने में आपको इतना बोर हो रहा है तो एग्जाम में 6 बार लिखने में कितना बोर होगा आपको. इनटू जो पैसा मैंने जून में निकाला, दैट्स यूज फॉर 7 months. जो पैसा मैंने 1 जुलाई को निकाला, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 6 months. 5, 4, 3 and 2. ये अगर आप स्ट्रेच करोगे टाइमलाइन पे लेके, कुछ इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. अब इसको अगर आप कैलसी पे ले लेते हैं तो आपका ये आंसर आएगा 3375, right? So this was just to prove that our mathematical formula gives the correct answer, right? So just simply revise this. आज हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन. सबसे पहली बात मैंने आपको सिखाई कि बोथ आईओसी एंड आईओडी इज कैलकुलेटेड एट ईयर एंड. तो आप टाइमलाइन बना लीजिए और आप कहां खड़े हैं? ईयर एंड पे. कैसे? मुस्कुराते हुए. बराबर, आप ईयर एंड पे खड़े हैं. अब कैपिटल और ड्राइंग दोनों पे इंटरेस्ट निकालना है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन द क्वेश्चन टू मेक सेपरेट टाइमलाइन फॉर कैपिटल एंड मेक सेपरेट टाइमलाइन फॉर ड्राइंग्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है. तो एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. कैपिटल की टाइमलाइन पे कैपिटल के फिगर्स मार्क करिए, ड्राइंग की टाइमलाइन पे ड्राइंग्स के फिगर मार्क करिए और हर एक फिगर को ईयर एंड तक स्ट्रेच करके कैलकुलेट द इंटरेस्ट, यू गेट द आंसर. दिस इज द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड, राइट? इसके बाद हम ड्राइंग्स पे आ गए. ड्राइंग्स में अगर डेट ऑफ ड्राइंग दी है तो अच्छी बात है, आप ईयर एंड तक स्ट्रेच करेंगे. पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है, देन यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 months. यस. उसके बाद मैंने कहा कि व्हेन वी टॉक ऑफ ड्राइंग्स, नॉर्मली देयर कैन बी अ रेगुलरिटी इन द अमाउंट बीइंग विथड्रॉन. जैसे हर महीने मेरे घर खर्च के लिए मुझे 10,000 लगते, तो मैं हर महीने 10,000 निकालूंगा. अब हर महीने अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो ऐसा 12 बार ईयर एंड तक स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. तो यू हैव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? मंथली ड्राइंग. मंथली ड्राइंग दी है तो मंथली ड्राइंग 10,000 है तो 10,000, ईयरली नहीं, मंथली 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है तो 6.5, लास्ट डे है तो 5.5, मिडिल ऑफ द मंथ है तो 6, डिवाइड बाय 12 नहीं, बस इस पे खत्म. डेरिवेशन बताया. वैसे ही इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन, ये तब लगता है जब इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन, राइट? वैसे ही इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर एंड लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. क्वार्टर है तो क्वार्टरली ड्राइंग, मंथली था तो मंथली ड्राइंग. क्वार्टरली ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर है तो 2.5, मिडिल डे ऑफ द क्वार्टर है तो 2, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर है तो 1.5. और ऑफ लेट उन्होंने, अच्छा ये सब फॉर्मूले तब लगते हैं जब इक्वल अमाउंट है. अगर अनइक्वल अमाउंट है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट विल अप्लाई. यू विल हैव टू गो फॉर ईयर एंड स्ट्रेचिंग. एंड ऑफ लेट ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जहां हर महीने सेम अमाउंट तो विड्रॉ हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, पर पूरे 12 महीने नहीं हो रहा. तो अगर हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और कंटिन्यूअस हो रहा है, ऐसा नहीं कि जैन के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, नो, जैन फेब मार्च अप्रैल, कंटिन्यूअसली हो रहा है, मंथली हो रहा है और इक्वल अमाउंट हो रहा है, तो फिर यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला. व्हाट? टोटल ड्राइंग, यहां टोटल लेते हैं, मंथली नहीं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड डिवाइड बाय 12. और पीरियड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक के मंथ्स, लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक के मंथ्स, और ये दोनों का एवरेज इज डिफाइंड एज पीरियड. So this was a full-fledged lecture on calculation of IOC and calculation of IOD with its logics and mathematical formulas. Next class, we will be solving somewhere around 8 to 10 questions. 8 से 10 क्वेश्चन हम सिर्फ किस पे सॉल्व करने वाले हैं? IOC and IOD. Is that okay? So be prepared.
Any doubts, you are free to ask me. Thank you.